अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। यूएन में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया है। To multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. भारत की एक यंग डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनका जवाब दिया और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तानी पीएम के बयान के बाद यूएन में किस तरह से भांडा फोड़ किया है, धोया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कैसे जो वो बकवास करके अपनी जाबाजी के किस्से सुना के गया है यूएन के पटल पर खड़े होके, और एक बड़ी अजीब चीज देखी मैंने, यूनिवर्सिटी के भाषणों की तरह वहां का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में नारेबाजी करने के लिए भी आदमी लेके आता है। यस, आपने ये दुनिया के में कहीं किसी देश के डिप्लोमेट को नहीं देखा होगा कि जिसका हेड ऑफ स्टेट यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे रहा है और नारेबाजी लगाने के लिए अपने देश से लोग लेके आया है। इस तरह का, इस मानसिकता का देश है ये। इसको जाहिल को ये नहीं पता, ये कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंटरफियर ना करते तो फिर कोई अब किस्सा जंग का सुनाने के लिए बचता ही ना। इसका मतलब इसने ये तो मान लिया था कि सारे पाकिस्तानी मार दिए जाते तभी तो ये ऐसी बात बोल रहा है। तो सुनते हैं मिस गहलोत ने कैसे धज्जियां उड़ाई। और एक बात लेकिन उन्होंने बड़ी मजेदार बोली। क्या बोला कि भैया अगर टूटे हुए मकान और तबाह हुई एयरबेसेस तुम्हारे हिसाब से विक्ट्री हैं तो तुम खुश होते रहो, तुम्हें विक्ट्री मुबारक। सुनिए। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its prime minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Murid Ke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard.
This is our long-standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. I thank you, Mr. President. बहुत ही शानदार स्पीच, इसीलिए मैं इंटरफेयर नहीं करा कि उसको मैं अनुवाद करके बताऊं। एक चीज मुझे अब बहुत सुकून दे रही है, चाहे तुम सऊदीया के साथ कोई अपना मिलिट्री पैक्ट कर लो, चाहे तुम व्हाइट हाउस में जाकर खाना खा लो, भारत का स्टैंड अब पाकिस्तान के लिए नहीं बदल रहा है। जो पॉलिटिकली करेक्ट, डिप्लोमेटिकली करेक्ट बातें होती थी वो मुझे कितने साल से, वर्षों से परेशान करती थी। जब मैं बोलता था तो कुछ ज्ञानी आ जाते थे, बच्चे जो कभी कभी आ जाते हैं, 1-2 दिन पहले भी वीडियोस में आ गए थे मुझे समझाने के लिए कि रिजवान तुम ये समझते नहीं हो, ये डिप्लोमेसी का और ये पॉलिटिकल का और जियोपॉलिटिक्स का तरीका ऐसा होता है। तो कम से कम रिजवान इस बात से खुश है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, डिप्लोमेटिकली करेक्ट, जियोपॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट, लीपा पोती, डियर नेबर, वी विल सॉर्ट इट आउट वगैरह वगैरह, वी बोथ शुड लिव इन पीस, इस तरह की बातें खत्म हो गई हैं। दुश्मनी साफ नजर आने लगी है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो। दूसरी तरफ से भी अगर दुश्मनी नजर आए तो मैं उसका भी स्वागत और खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। दोनों तरफ से जब तक कम से कम इन दोनों में, खेल के मैदान से यूनाइटेड नेशन में, दुश्मनी नजर नहीं आएगी, तब तक कम से कम मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो इस बात का मुझे सुकून है कि खेल का मैदान हो, चाहे हमारा यूनाइटेड नेशन हो, भारत की मैं हनक और दुश्मनी जो आंखों में देखना चाहता था उसकी अभी शुरुआत हुई है। मेरा लेवल बहुत हाई है, उसकी अभी शुरुआत हुई है। दुआ करूंगा कि यह हनक और यह दुश्मनी इसी तरह आगे इनके लिए और नफरत बढ़ती रहे। जय हिंद। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को रिप्लाई आ चुका है यूएन में। पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं, और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं। और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भारत की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना है। बहरहाल एक नए लेवल पे ये बात जा चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं संभल के बात करनी चाहिए पाकिस्तान को, और देखना चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है और कहाँ पे हम चीज को सही कर सकते हैं। सिर्फ बजाय इसके कि बार बार कभी हम कहते हैं 6 जहाज गिरा दिए, 5 से शुरू होकर हम 7 तक पहुंच गए, लेकिन हमारी बात का कोई प्रूफ अभी तक हम नहीं दे पाए कि हमने कोई जहाज गिराया है। गिराया होगा, जरूर गिराया होगा, और हमारे कई लोग जो हैं, बल्कि भारत से भी कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन आप बार बार इस चीज को अगर रिपीट करेंगे तो दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हैं कि टर्म्स ठीक हो जाएं, तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। और पाकिस्तान को अब इस मामले को जरा समझदारी से, जरा थोड़ी अक्ल लगा के हैंडल करना चाहिए। बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब को आदत है पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ बातचीत करने की, उन्हीं को इंटरव्यू देने की, जिनमें से अक्सर के टीवी चैनल्स को या शोज को ये लोग कमर्शियल्स देते हैं, पैसा देते हैं, और इसीलिए वो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इनके हाथों जाहिर है कि जिस तरीके से बिका। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत ने यूएन के मंच से एक बार फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। भारत के डिप्लोमेट पीतल गहलोत ने आतंक पर पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि ये भी साफ साफ कह दिया कि अगर आगे कोई भी गलत हरकत भारत के खिलाफ होती है तो भारत करारा जवाब देगा। हालत यह हो गई कि पाकिस्तान को भरे मंच पर शर्मिंदा होना पड़ा।